आज पेश हुए बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। बजट को लेकर और इसमें विकसित भारत की भागीदारी को लेकर वित्त मंत्री ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मगर जनता के हाथ में पैसा, कौन जनता? जो टैक्स पेयर। Ma'am, also with regard to MSMEs, there are many announcements, but you've also made an additional 1.5 lakh crore credit guarantee for MSMEs for the next 5 years. The question comes to mind for the MSMEs is that the credit is available, but at what rates? How will they get it? That's right. That is why, if you remember, in the last budget in July, I had very clearly said that SIDBI will be now directed to open branches in industrial MSME clusters. Ministry of MSME has more than 180, if I remember the number correct, clusters all over the country where MSMEs are located in one area. So in each one of these clusters, eventually in a matter of 3 years, we want to have SIDBI branches. When SIDBI directly lends, SIDBI normally lends it through the banks, and the banks sometimes pass it on to the NBFCs. They in turn pass it on to small finance companies, who obviously for every stage jack up the interest rate. Whereas here, when SIDBI does it directly, the rate of interest is going to be reasonable. And also the usual complaint from MSME is they don't, any lender middle class को दे रहे हैं, जिससे उनका मन में जो डाउट आने लगा कि इस सरकार से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। मिडिल क्लास को तो मोदी जी पहले से रिस्पेक्ट करते थे, टैक्स पेयर को रेड कार्पेट, रेड ribbon, I mean like there shall not be any corruption, we shall treat taxpayers with respect, taxpayer charter भी हम ले आए। वो सी श्रृंखला में ये भी एक कदम है जिसमें हम टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे ट्रस्ट, उनके ऊपर ट्रस्ट रख करके बिजनेस चलाने के लिए, आगे देश को ले आने के लिए। ट्रस्ट शब्द का प्रयोग आपने 12 बार किया पूरी स्पीच में। ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच तो स्पष्ट तौर पर दिखता है, लेकिन चाहे वो कैपेक्स में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो या फिर टैक्स रिबेट के जरिए नई कर व्यवस्था के जरिए लोगों के कंजम्पशन को बढ़ावा देना हो, या फिर फिस्कल डिसिप्लिन के जरिए फिस्कल डेफिसिट को लगातार नीचे कम करना हो, ये तीनों ही माध्यम से हम शायद निवेशकों को ये कहना चाहते हैं कि आप आइए, देश में निवेश करिए और भारत तैयार है भविष्य के लिए। इसके साथ BIT का रिव्यू भी हम कर रहे हैं, जिससे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट्स जो जब देश के साथ दूसरे देश के साथ करते हैं बायलैटरली, उसका भी फॉर्मेट भी और उसका सेक्शंस का भी और रोबस्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और सर्टेनली इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो भी हम मेशर उठाना है उसको उठाएंगे। Ma'am, you've announced support for the leather, footwear and products industry in terms of toys, in terms of technology and infrastructure, I think. So what kind of support is this, ma'am? I mean, what can they expect? As it is, you find that we have been giving PLI for many of the products, particularly when it came to electronics, and that has paid off very well. There are some other sectors where we need to give a bit more push, but these three sectors we want to understand their requirements and support them. Just as even in this budget, for instance, I have reduced the duty, import duty on certain critical minerals, because they are very important for us, particularly for the MSMEs, for improving on their manufacturing capabilities. Similarly, for leather, we've also tweaked the import duty and export duty for some other items, so that some valued raw material can go from India out, so that small tanners can benefit from it, the crushed leather. So the measures have been not just through one route of incentivizing production. Measures are also for cost cutting in terms of input costs. इसका मतलब ये है कि हमारे हर एक प्लानिंग में हर एक गोल को अचीव करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इस स्कीम में कौन सा करना चाहिए, इसके लिए कितना पैसा इस साल देना है, 10 साल के बाद देना पड़ेगा, ये सब का चर्चा होता है। इसीलिए विस्तार से प्लान कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए। सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, जब पैसा स्टेट्स को भी जाता है, वो भी उनके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आजकल ये रास्ते अपना रहे हैं, जिससे हम सब इकट्ठा होकर के भारत को उस दिशा में ले सकते हैं।
और अगर मैं एक फॉलोअप किस पे कर पाऊं मैम, आपने एक फिगर दिया है कि आपने स्टेट को पिछले साल के मुकाबले 4,91,000 करोड़ रुपए 4.9 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा दिया है इस बार। तो आपने तो अपना काम कर दिया केंद्र सरकार के बजट के जरिए, आपने पैसे भी स्टेट्स को दे दिए। स्टेट्स को आपने बोला कि भाई अगले 50 साल के लिए हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे अगर आप कैपेक्स बढ़ाते हैं या फिर रिफॉर्म्स करते हैं। स्टेट्स को साथ लेके कैसे चलेंगे मैम विकसित भारत के इस विजन को प्राप्त करने के लिए? मैं एक्चुअली आपको रिस्पॉन्ड करना है तो तुरंत ये बोलूंगी, 21 से ये 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं हम। इंटरेस्ट मतलब रुचि इसमें स्टेट्स के साथ से बात करने में आपको समझ में आएगा। स्टेट्स इसको इतना जोश से ले रहे हैं, वो उनको इससे फायदा हो रही है। उनका बहुत देर से, बहुत सालों से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रही है, उनको ये चाहिए और उनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इंटरेस्ट फ्री जब पैसा मिलता है वो भी तुरंत इसमें काम में लग जाते हैं। इसीलिए स्टेट्स के साथ काम करना इसमें चैलेंज नहीं है, इसमें चैलेंज ये है कि उनके जितना डिमांड है, हाँ